Good morning, all of you. In today's part of the surface chemistry, we will discuss about the BET equation and their application along with their validity. So first of all, before going in detail about the BET equation, let's take a review about the adsorption isotherm. So what is the adsorption isotherm? Iso means same, therm means temperature. Adsorption isotherm is a plot. Adsorption isotherm is a graph. Adsorption isotherm is a graph which is a plot between the extent of adsorption and the pressure at a constant temperature. That called the adsorption isotherm. As you can see in that particular diagram, along the y-axis we have taken x by m, that is the extent of adsorption, and along the x-axis we have taken the pressure. So what is the effect of the pressure on the extent of adsorption at a constant temperature? That called as the adsorption isotherm. And these adsorption isotherm may be of different type. They are categorized in different forms. तो adsorption जो isotherm है, they may be of different type. ये आपके different type के हो सकते हैं. That may be the type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. They may be of different type. But out of these different adsorption isotherm, only the type 1, that is the ideal isotherm, ये आपका आइडियल एडजोशन आइसोथर्म कहलाता है, जो टाइप 1 आइसोथर्म है, जो आपके सामने आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. तो ये जो आपका नंबर 1 है, आपका टाइप 1, इसके अंदर जो हमने लिखा अलोंग द वाई एक्सिस x by m, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एडजोशन. एक्सटेंट ऑफ एडजोशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट which is represented by x and the amount of adsorbent which is represented by m. So the ratio of x by m is called as the extent of adsorption. And the different type of adsorption isotherms are possible. Among these, the first one is the type 1 adsorption isotherm, which is initially explained by the Freundlich and later approved by the Langmuir. And that adsorption isotherm is the idealized adsorption isotherm and also called as the Langmuir isotherm. क्योंकि finally इम्प्रूव्ड किसने किया था? लैंगम्योर ने, इसलिए हम इसको लैंगम्योर आइसोथर्म भी कह देते हैं. इस पूरे आइसोथर्म के अंदर आप क्या देखेंगे कि एप्लीकेबल कब होता है. हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि द टाइप 1 एडजोशन आइसोथर्म इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ फिजिकल एंड द केमिकल एडजोशन. एंड इन दैट पर्टिकुलर आइसोथर्म, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हैं, इन टाइप 1 एडजोशन आइसोथर्म एडजोर्शन इनिशियली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर. जब हम शुरू में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो एडजोर्शन है वो क्या है, वो आपकी इंक्रीज होती है. एंड देन इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट आफ्टर पर्टिकुलर लिमिट ऑफ प्रेशर. जब प्रेशर की एक लिमिट आ जाती है उसके बाद आपकी एक्सटेंट ऑफ एडजोर्शन क्या रह जाती है, आपकी कांस्टेंट हो जाती है. मींस आपकी जो टाइप 1 एडजोर्शन आइसोथर्म है, इसके बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द यूनिमोलिकुलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर हम एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा यूनिफॉर्म लेयर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे शो किया, देयर इज ए सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन व्हिच द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स come and get stick on their surface to form a unimolecular layer. So that is the type 1. Similarly, there are different type of other adsorption isotherm from type ranges from type 2 to type 5, and these are further explained by the Brunner, Emmett and the Taylor through an equation called as the BET equation. BET equation के थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन भी किया जाएगा अभी. और जो डिफरेंट आपके एडजोर्शन आइसोथर्म है, जैसे टाइप 2, जो टाइप 2 है, ये एप्लीकेबल कब होगा और इसमें होता क्या है, यूनिमोलिकुलर लेयर is formed at low pressure and multimolecular layer is formed at the high pressure, as we already discussed in the previous lecture. In the type 3, multimolecular layer is supposed to be formed on the surface of the adsorbent starting from the beginning. बिल्कुल स्टार्ट से ही डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगी, मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है. हम इन सारे ग्राफ को एक्सप्लेन भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बेट इक्वेशन. बेट इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से हम डिफरेंट जो आपके एडजोर्शन आइसोथर्म है, कैसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप 4. टाइप 4 क्या है? It explains the formation of the unimolecular layer at the low pressure and the multimolecular layer along with the condensation of the gases in the pores at the high pressure. Means जो type 1 adsorption isotherm, it is applicable for those type of adsorbent which have the porous solid, which are porous solid. जो porous solid होंगे वो solid जो adsorbent का काम करेंगे उनके surface के ऊपर pores का होना जरूरी है, तभी तो आपकी कंडेंसेशन ऑफ गैसेस होगी इन द पोर्स एट द हाई प्रेशर. नेक्स्ट टाइप 5 जो आपकी
adsorption isotherm, even in that particular isotherm, the multimolecular layer is supposed to be formed at the surface of the adsorbent from the beginning, along with the condensation of the gases in the pore. तो मीन्स आपके टाइप 4 और टाइप 5 के जो एडजोशन आइसोथर्म हैं ये पॉसिबल कब होंगे? व्हेन वी हैव द porous solid, we have the porous solid means porous adsorbent हमारे पास हो जिसके सरफेस के ऊपर आपके पोर्स हो, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे टाइप 4 और टाइप 5 एडजोशन आइसोथर्म्स को। अब ये जो डिफरेंट टाइप के एडजोशन आइसोथर्म है इनको एक्सप्लेन किया जाएगा बाय यूजिंग द बेट इक्वेशन। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज बेट इक्वेशन? बेट इक्वेशन है क्या? द बेट इक्वेशन, इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, वन इज द ब्रोनर, एमेट एंड द टेलर हु गिव्स दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। एंड द बेट इक्वेशन is empirical equation which explain the effect of the pressure on the formation of the multimolecular layer over the unimolecular layer। आपके पास एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ये यूनिमोलिकुलर लेयर हुई और उसके ऊपर फर्दर फॉर्मेशन होती चली जाती है लेयर्स की, मींस मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर द यूनिमोलिकुलर लेयर। एंड इट आल्सो एक्सप्लेन the formation of the multimolecular layer along with the condensation of gases in the pores of the adsorbent। आप नेक्स्ट देखो इस एडजॉर्बेंट को देखिए, इसका सरफेस हमने नॉन यूनिफॉर्म दिखाया है, इट इज नॉट द प्लेन सरफेस, मींस हमने ये रेजिस दिखाई है, मींस दैट रिप्रेजेंट्स द पोर अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो इस टाइप से ये पोर्स हमने दिखाए जो जिगजैग फॉर्म के अंदर, वेवी फॉर्म के अंदर दिखाया है। तो ये जो वेवी फॉर्म है, जो रेजिस बन गई है, ये कोई और नहीं, हमने एज्यूम किया दीज आर द पोर्स। अब क्या होगा, इन पोर्स के अंदर भी आपके जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, एडजॉर्बेट गैसेस पार्टिकल हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा एडजॉर्बेंट के इस सरफेस के ऊपर। देखो जैसे आपने देखा ये एडजॉर्बेट की लेयर बन गई, देखो पोर्स के अंदर भी चले गए, सेकंड लेयर भी बन गई, थर्ड लेयर भी बन गई। तो मींस मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अलोंग विद द कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस इन द पोर्स ऑफ द एडजॉर्बेंट। फर्दर आप थर्ड डायग्राम में आप देख पाएंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट द कंपल्शन दैट whole of the surface the particle is present, means no beard surface is present, ऐसा भी नहीं। तो मींस आप बड़े ध्यान से देखें, अब हमने यहाँ पे क्या शो किया है, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आपके कहीं पे तो जो पार्टिकल है, जो फर्स्ट लेयर बनी, कहीं पे बेयर्ड सरफेस भी एरिया भी रह गया, देखो बीच में जहाँ पे पार्टिकल, रेड पार्टिकल नहीं है, तो ये जो जगह है यहाँ पे ये कैसा है, ये एक बेयर्ड सरफेस एरिया है, ये बेयर सरफेस है। देखो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल अटैच नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है जो फर्स्ट लेयर जो बनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ वन ही पार्टिकल है, सिर्फ बोलो कितने पार्टिकल है यहाँ पे, ओनली वन पार्टिकल इज प्रेजेंट, ओनली वन पार्टिकल इज प्रेजेंट, नो फर्दर लेयर इज प्रेजेंट। सेकंड में देखे, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का पार्टिकल है, फिर सेकंड रो, देखो यहाँ पे 2 रोज बन गई, बोलो क्या बन गई, बोलो यहाँ पे 1 के ऊपर अनदर रो बन गई। तो यहाँ पे बोलो कितने पार्टिकल्स है, 1 अबव द अदर 2। नेक्स्ट में आप देखेंगे, बोलो यहाँ पे कितने आ गए, बोलो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स आ गए। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है 1 अबव द अदर, देयर आर 2 पार्टिकल्स 1 अबव द अदर, द नेक्स्ट वन देयर आर द 3 पार्टिकल्स 1 अबव द अदर एंड सो ऑन। तो ये डिफर कर सकते हैं ओवर होल द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। मीन्स आपने क्या देखा, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कहीं तो सिर्फ आपका एक ही पार्टिकल है, कहीं पे आपके 2 पार्टिकल्स 1 अबव द अदर आ गए, कहीं पे 3 पार्टिकल्स आ गए, कहीं पे 4 पार्टिकल आ गए एंड सो ऑन। तो मीन्स यही आपकी बेट इक्वेशन की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेट इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, देयर में अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीमोलिकुलर लेयर और द यूनिमोलिकुलर लेयर पूरे के ऊपर बन जाए, जैसे फर्स्ट डायग्राम दिखाया। along with the formation of the multimolecular layer there occurs also the condensation of the gases in the pores of the adsorbent, ऐसा भी हो जाए। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि कंप्लीट जो सरफेस है वो पूरी तरह से कवर्ड अप हो जाए, कुछ बेयर्ड सरफेस एरिया भी खाली रह सकता है। और हर जगह ये यूनिफॉर्मिटी भी जरूरी नहीं कि हर जगह कंप्लीट फर्स्ट लेयर के ऊपर पूरी सेकंड आ जाए, पूरी थर्ड आ जाए। कहीं पर पार्टिकल 1 अबव द अदर 2 ही पार्टिकल रहते हैं, कहीं पे 3 रह सकते हैं, कहीं पे 4 एंड सो ऑन। तो ये थे बेसिक पॉइंट आपके जो आपकी बेट इक्वेशन के अंदर यूज किए जाएंगे, और इन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए ही बेट इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बेट इक्वेशन, द इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीमोलिकुलर लेयर ओवर द यूनिमोलिकुलर लेयर and also explain the formation of the multimolecular layer along with the condensation of the gases in the pores of the adsorbent is called as the बेट इक्वेशन and is given by, और वो है क्या, वो ये है कि V is equal to Vm CF divided by 1 minus F
मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर c माइनस v और ब्रैकेट से बाहर f, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बेट इक्वेशन। और ये जो बेट इक्वेशन डिराइव की गई, ये इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी डिराइव की गई। उसका डेरिवेशन अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे हमारे आज के लेक्चर के अंदर, हम सिर्फ जो ये बेट इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम डिफरेंट जो एडजोशन आइसोथर्म है, हमारे एडजोशन आइसोथर्म नंबर 1 टाइप 1 से लेकर टाइप 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे और बेट इक्वेशन की हम एप्लीकेशन देखेंगे, उसकी वैलिडिटी हम चेक करेंगे। अब हम ये देख लें कि जो ये डिफरेंट टर्म्स हैं इस बेट इक्वेशन के अंदर, जैसे v इज इक्वल टू, तो v क्या है, vm क्या है, c क्या है, f क्या है, हम इन सारी चीजों को अभी हम इन डिटेल में देखते हैं। तो व्हाट इज v हियर? v is the volume of the gas at reduced STP adsorbed at a given temperature and the pressure। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो एडजॉर्ब किया गया है वो कितना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। उसी को डिटरमाइन करने के लिए आपकी बेट इक्वेशन डिराइव की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज vm? vm क्या है? vm इज द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ओवर द यूनिमोलिकुलर लेयर। मींस एक यूनिमोलिकुलर लेयर बन चुकी है एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, अब उसके ऊपर जो फर्दर लेयर्स बनती हैं तो उन गैसेस के पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है जिसकी वजह से फर्दर लेयर्स बन गई, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड सो ऑन, तो वो कहलाता है vm। मींस vm इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रिड्यूस्ड STP adsorbed over the unimolecular layer। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज f here? f is the ratio of these two pressure, that is the P divided by P naught। So what is P here? P is the given pressure and P naught is the vapor pressure of the liquefied gas at a particular temperature T। किसी particular temperature T के ऊपर जो liquefied gas है उसका vapor pressure कितना है उसको हम represent करेंगे P naught से, और जो ये रेशियो है P upon P naught उसको हम F से represent कर रहे हैं। The ratio of these two pressures called as the F, वो आपका F है। Next, what is c here? C is a constant. It is given by an exponential term e raised to the power e1 minus el divided by RT। So what is E1 here? That is the heat of adsorption of the gas in the first layer। Means when the adsorption takes place on the surface of the adsorbent by the adsorbate particle, then the amount of heat released, the amount of the energy released, that released energy is called as the heat of adsorption। हमने previous lecture के अंदर डिस्कस भी की थी डेफिनेशन को। मींस आपके बाहर से जो एडजॉर्बेट पार्टिकल है वो कितने आए, क्योंकि हमें पता भी है यूनिट किलो जूल पर मोल में हम लेते हैं, पर मोल मींस 1 मोल लेंगे। अगर हमारे पास 1 मोल एडजॉर्बेट है और 1 मोल एडजॉर्बेट स्टिक हो गया किसके ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, उस वक्त कितनी निकली हीट, कितनी हुई रिलीज्ड हीट, आपकी एनर्जी, उसी को कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और हियर E1 इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कब, व्हेन द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड E1। नेक्स्ट वन इज EL। EL is what? It is the heat of liquefaction of the gas। Means when we apply the pressure from the outside, there occurs the formation of the different layers। different layer बनती है फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद थर्ड। तो जो particles हैं आपके adsorbate particle, they come closer to each other and they have the chances of the conversion into the liquid। वो liquefaction उनकी हो जाती है, तो उस वक्त कितनी हीट चेंज हुई, that called as the heat of liquefaction of the gas, that is the EL। और R जो है वो तो आप जानते हैं, that is the gas constant here, T is the temperature in Kelvin। फर्दर अब हम देखना चाहते हैं एजम्पशन। मींस जब बेट इक्वेशन को डिराइव किया जाता है तो उस दौरान हमने क्या क्या एजम्पशंस ली। जो ये फार्मूला जो डिराइव हुआ है, जो अभी आपको ऊपर दिख रहा है, v इज इक्वल टू VmCF डिवाइडेड बाय 1 माइनस f मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में क्या है c माइनस 1 और बाहर है f, दैट इक्वेशन इज द बेट इक्वेशन। और जब ये इक्वेशन डिराइव की गई उस दौरान क्या क्या एजम्पशंस ली गई थी, ये बेट इक्वेशन एक्सप्लेन क्या करती है, वो तो इसकी डेफिनेशन बन चुकी है कि द एम्पेरिकल इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीमोलिकुलर लेयर ओवर द यूनिमोलिकुलर लेयर along with the formation of the multimolecular layer along with the condensation of the gas in the pores of the adsorbent is called the बेट इक्वेशन। लेकिन जो ये बेट इक्वेशन जो डिराइव होके आ गई, ये हुई कैसे, कौन सी एजम्पशंस हमें लेनी पड़ी थी, तो हम उन एजम्पशंस को देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन वही बेसिक है जो अभी हमारी डेफिनेशन के अंदर भी आ गई। फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड। फर्स्ट लेयर कैसे बनती है, फर्स्ट लेयर जो बनती है तो उसमें इंटरेक्शन किन के बीच होती है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर देयर अकर्स द इंटरेक्शन इन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट।
while during the formation of the further layer, that is the second, third, fourth, and so on, there occurs the interaction in between the different gaseous adsorbate particles. तो मींस जो आपकी फर्स्ट लेयर बनी, तो फर्स्ट लेयर के फॉर्मेशन के दौरान तो इंटरेक्शन हुई एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच। एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स को हमने रेड कलर के स्फीयर से शो कर रखा है, और जो फर्दर इंटरेक्शन होती है आपके एडजॉर्बेट फर्दर लेयर्स के बीच, वो आपके इंटरेक्शन किसके बीच होती है बोलो? फर्दर लेयर्स के अंदर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट के बीच। अब इसी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि पॉइंट नंबर 1, द हीट ऑफ एडजॉर्शन इन ऑल द लेयर्स अबव द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मींस फर्स्ट लेयर बनने के बाद जो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर जो बनती हैं, वो कब बनती हैं? व्हेन दीज adsorbate particles come closer to each other, means something interaction takes place, means something liquefaction takes place, and that liquefaction called as the heat of adsorption। और ये कहा गया कि जो heat of adsorption की जो वैल्यू होगी in all the layers which are present above the first layer is equal to the latent heat of condensation, उसे आप latent heat of condensation कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, देखो दो प्रोसेस चलती हैं। आपके जो पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आ गए, फर्स्ट लेयर बन गई, और फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकंड, थर्ड लेयर के जो पार्टिकल है एडजॉर्बेंट के, वो आ गए। तो मींस कंटिन्यूअसली दो प्रोसेस चलती रहती है, वन इज द एडजॉर्प्शन, अदर वन इज द डिसॉर्प्शन। मींस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब ये साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, तो जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब साइमल्टेनियसली चलती हैं और जब मैथमेटिकल हम डेरिवेशन करते हैं, तो उसके दौरान जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कांस्टेंट जो आते हैं डेरिवेशन के दौरान, तो the evaporation or the condensation constant in all the layers above first layer are identical। उन सभी के सभी जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे? सभी के आइडेंटिकल होंगे, इन irrespective of the nature of the second layer or the third layer or the fourth layer and so on। लेयर चाहे कोई भी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो कांस्टेंट होंगे in all the layers above the first layer are identical, वो आइडेंटिकल ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो अजम्पशन ली गई वो क्या? व्हेन द प्रेशर बिकम इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन मींस एक ऐसा प्रेशर, उसके बाद चाहे आप कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा दे, नो फर्दर एडजॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर क्या कहा गया कि व्हेन द प्रेशर becomes equal to the saturation pressure then adsorption become infinite। क्योंकि जितनी एडजॉर्प्शन होनी थी वो हो चुकी, जितना प्रेशर हमें लगाना था और जिस प्रेशर लगाने से जितनी मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होनी थी वो हो चुकी है, उसके बाद और फर्दर एडजॉर्प्शन नहीं होगी। मींस जब मैक्सिमम हो चुकी है तो मैक्सिमम को हम इनफाइनाइट बोलते हैं, तो मींस देन द एडजॉर्प्शन बिकम्स इनफाइनाइट। सो दीज आर द बेसिक अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द बेट इक्वेशन इज डिराइव्ड। बेट इक्वेशन को डिराइव किया गया है, लेकिन कैसे किया गया डिराइव वो हम आज के लेक्चर में स्टडी नहीं करेंगे। फर्दर अभी फिलहाल जो हम स्टडी करने वाले हैं इन टुडेज लेक्चर, तो इन टुडेज लेक्चर वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम डिफरेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करेंगे जो टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेट इक्वेशन। हाउ द बेट इक्वेशन इज हेल्पफुल, हाउ द बेट इक्वेशन इज हेल्पफुल in explaining the different adjacent isotherm, that is the type 1 to type 5। जो टाइप 1 से टाइप 5 तक के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसमें बेट इक्वेशन कैसे हेल्पफुल है, कैसे उनको एक्सप्लेन करने में अपने आप को एक्सप्लेन, अपने आप को शो कर पाती है, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले टाइप 1 को। तो कैसे बेट इक्वेशन की हेल्प से, अंडर विच कंडीशंस द बेट इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज द टाइप नंबर 1। तो अभी वो कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन हियर इज व्हेन द वैल्यू ऑफ c इज ग्रेटर देन 1। जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। अभी आपने देखा था आखिर c है क्या, आपने देखा था यहाँ पे कांस्टेंट है c, c is the exponential term है, c is equal to e raised to the power e1 minus el divided by rt। तो अगर हम c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दें, वो कब होगी? वो सिर्फ तभी होगी जब e1 इज ग्रेटर देन el हो जाए, क्योंकि e1 माइनस el है, तो c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करनी है, वो तभी हो सकती है व्हेन e1 इज ग्रेटर देन el हो जाए। दूसरी चीज क्या होगी? व्हेन f इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब f का फार्मूला क्या है? f इज द रेशियो ऑफ दीज टू प्रेशर p डिवाइडेड बाय p नॉट। तो मींस ये लेस देन कब होगा? ये सिर्फ तभी होगा व्हेन p और p डैश की जो रेशियो है, p नोट की जो वैल्यू है, वो क्या आ जाए? लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगी? जब p नोट क्या हो जाए? p नोट की वैल्यू बड़ी हो, p की वैल्यू छोटी हो, तभी तो वो आंसर हमारा छोटा आएगा। और p नोट की वैल्यू आपकी बड़ी कब होगी? P नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विफाइड गैस एट ए टेम्परेचर T।
मीन्स अब इसका मतलब क्या हो गया कि सिंगल यूनिमोलिकुलर लेयर इज सपोज टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, मतलब पी नोट की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विफाइड गैस जो है उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है मीन्स आपके जो गैसियस पार्टिकल हैं उनकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी कम है, मतलब वो इजीली लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो वही मतलब है पी नोट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विफाइड गैस एट ए टेम्परेचर टी। अगर पी नोट की वैल्यू ज्यादा हो मीन्स बहुत ज्यादा यानी प्रेशर हम लगाएंगे तभी वो लिक्विफाई हो सके, इट मीन्स वो इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, मीन्स यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो मीन्स हम यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होती है आपके टाइप 1 के अंदर। तो यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन हम कब एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपकी जो गैस है, जो एडजॉर्बेट गैसियस पार्टिकल है, उनकी वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है लिक्विफाइड गैस की वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, मीन्स वो इजिली लिक्विफाई ना हो सकते हो, मीन्स फर्दर लेयर ना बन पाए। तो फर्दर लेयर कब नहीं बन पाएगी, सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर ही कब बनेगी, वो सिर्फ तभी बन सकती है जैसे मैंने आपको बताया जब पी नोट की वैल्यू ज्यादा हो। और दूसरी जब E1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्या आ जाए, बोलो EL आ जाए, मीन्स हीट ऑफ एडजोशन ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स हीट ऑफ एडजोशन मीन्स आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म लेयर बनाने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। हीट ऑफ एडजोशन ज्यादा मतलब ज्यादा हीट निकलेगी, मोर द हीट रिलीज मोर विल द स्टेबिलिटी, मीन्स यूनिमोलिकुलर लेयर विल बी फॉर्म्ड इजीली। तो मीन्स E1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि यूनिमोलिकुलर लेयर इजीली बनेगी, क्योंकि ज्यादा यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन बनते वक्त ज्यादा हीट निकल जाएगी, ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, और जितनी एनर्जी बाहर निकले खुद की एनर्जी कम, और खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मींस यूनिमोलिकुलर लेयर एक स्टेबल फॉर्म के अंदर बन चुकी है ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो ये आपने देखा, ये हमारा था टाइप नंबर 1, मींस हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि एडजॉर्शन इनिशियली इंक्रीजेस rapidly with the pressure and that it remain constant and thus it explain the type 1 adsorption isotherm। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइप 1 एडजोशन आइसोथर्म बेट इक्वेशन कब एक्सप्लेन कर सकती है, वो कंडीशन क्या है। तो कंडीशन वही है जो हमने ऊपर लिखा, व्हेन C इज ग्रेटर देन 1 दैट इज E1 इज ग्रेटर देन EL एंड F इज लेस देन 1। F इज लेस देन 1 कब होगी, व्हेन द रेशियो ऑफ P डिवाइडेड बाय P नोट इज लेस देन 1, मींस P नोट की वैल्यू बहुत बड़ी हो, मतलब जो एडजॉर्बेट गैसेस वो इजीली लिक्विफाई ना हो सके, इजीली लिक्विफाई ना हो सके मींस जो फर्स्ट लेयर बनेगी उसके ऊपर फर्दर लेयर ना बन पाए, वो बन ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनकी जो लिक्विफिकेशन होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल देख लें कि ये जो टाइप 1 है ये कहाँ पे स्टडी किया गया है। तो एग्जांपल हमारा क्या है कि एडजॉर्प्शन ऑफ द N2 गैस एट -195 डिग्री सेल्सियस एंड द O2 गैस एट -183 डिग्री -183 डिग्री सेल्सियस ऑन द चारकोल। चारकोल के ऊपर जब हम टेम्परेचर इतना कर दे 195 -195 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट्रोजन की जो एडजोशन है वो क्या शो करती है, वो यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन शो करती है। ऐसे ही -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑक्सीजन, वो भी यूनिमोलिकुलर लेयर एक्सप्लेन करती है। तो मींस यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है ऑक्सीजन गैस की। तो ये था आपका टाइप 1 एडजोशन आइसोथर्म। अब हम देखते हैं टाइप 2। तो ये था आपका टाइप 2। देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, बेट इक्वेशन की हेल्प से। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन वही वहां पे हमने कहा था C इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन C इज ग्रेटर देन 1। C ग्रेटर देन 1 कब होगा, उसी टाइप से फार्मूले को, C के फार्मूले को देखें। C क्या था, C इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज टू द पावर E1 माइनस EL डिवाइडेड बाय RT। तो मींस E1 ग्रेटर देन EL होगा तभी तो C ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरी बात, F इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो F इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, P डिवाइडेड बाय P नोट इज ग्रेटर देन 1। तो ये बड़ा कब होगा, ये बड़ा सिर्फ तभी होगा जब क्या कर दे बोलो हम, जब P की वैल्यू बड़ी हो जाए और P नोट की वैल्यू क्या हो, थोड़ी छोटी हो। अगर P नोट की वैल्यू छोटी है तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है। गैस इजीली लिक्विफाई होने का क्या मतलब हुआ, मतलब पहली लेयर के ऊपर और लेयर भी बन जाएंगी, मींस मल्टीमोलिकुलर लेयर formation also takes place, means initially the unimolecular layer will be formed, इनिशियली यूनिमोलिकुलर लेयर विल बी फॉर्म्ड। क्यों, क्योंकि C इज ग्रेटर देन 1 है, E1 इज ग्रेटर देन EL ही है, यहाँ पे E1 ग्रेटर देन EL है तो उससे होगा क्या, E1 क्या है, E1 है हीट ऑफ एडजोशन ऑफ द फर्स्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो हीट ऑफ एडजोशन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जब यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है तो उसके दौरान ज्यादा हीट रिलीज होती है, मतलब फर्स्ट जो लेयर बनेगी दैट इज द यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी वो स्टेबल है। लेकिन साथ के साथ हमने क्या किया, P की वैल्यू
P इज ग्रेटर देन P नोट है, तो इसका मतलब जो गैस है, एडजॉर्बेट जो गैसेस हैं वो आपकी इजिली लिक्विफिएबल भी है, वो इजिली लिक्विफाई भी हो जाएंगी, मीन्स वो मल्टीमोलिकुलर लेयर भी बनाएंगी, एंड देन मल्टीमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड ओवर इट, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगी, मल्टीमोलिकुलर लेयर बन जाएगी, जैसे आपको डायग्राम के अंदर भी शो कर दिया है हमने। एंड thus it explain the type 2 adsorption isotherm। तो इस टाइप से हम टाइप 2 adsorption isotherm को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका एग्जांपल कि नोट डाउन कहां पे किया गया। इट इज फाउंड दैट द adsorption of the nitrogen gas at -195 डिग्री सेल्सियस on the iron catalyst and on the silica gel। तो वहां पर ये कंडीशन नंबर 2 होती है, टाइप 2 adsorption isotherm होता है वहां पे, मींस इनिशियली यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होती है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीमोलिकुलर, मींस मेनी लेयर आर फॉर्म्ड अबाउट द फर्स्ट लेयर। अब हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप 3 ग्राफ को। टाइप 3 ग्राफ क्या है? टाइप 3 ग्राफ ये है कि जिसके दौरान इनिशियली स्टार्ट से ही मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन हो जाए। तो मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन कब होगी? वो सिर्फ तभी होगी मीन्स जब एकदम सारी लेयर इकट्ठी बन जाए, मतलब गैस जो है इजिली लिक्विफिएबल होगी। तो मीन्स सी क्या होगा बोलो, लेस देन 1 होगा। मींस E1 की वैल्यू लेस देन बोलो क्या होगी, EL। मतलब आपकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है फर्स्ट लेयर की ही आपकी क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती तो स्टेबल क्या रहती, फर्स्ट लेयर ही स्टेबल होती। इट मींस यहाँ पे फर्स्ट लेयर ही स्टेबल नहीं, फर्स्ट के ऊपर क्या बनेगी, फर्स्ट लेयर बनते एकदम उसको स्टेबिलिटी क्रिएट करवाने के लिए उसके बाद सेकंड लेयर बनेगी, सेकंड के बाद थर्ड बनेगी, थर्ड के बाद फोर्थ, मींस at on the spot at once not only the unimolecular layer formation takes place, means simultaneously the multimolecular layer formation takes place। और ऐसा कब होगा, जब F is greater than 1 हो, means P की वैल्यू ज्यादा हो, P नोट की वैल्यू क्या हो, कम हो। P नोट की वैल्यू कम होने का मतलब जो गैस है वो इजिली लिक्विफिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो, गैस इजिली लिक्विफिएबल होनी चाहिए। तो मींस मल्टीमोलिकुलर लेयर इज supposed to be formed on the surface of the adsorbent from the very beginning, बिल्कुल शुरू से ही, and thus it explain the type 3 adsorption isotherm। मींस वो उसका एग्जांपल क्या है, it is found that the adsorption of the Br2 and the I2 at a temperature of 79 degrees Celsius on the silica gel explains about the type 3 adsorption isotherm। वो एक्सप्लेन करता है टाइप 3 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे टाइप 4 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। टाइप 4 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जैसे हमने पहले बताया था वो एप्लीकेबल कब होता है, व्हेन वी हैव द पोरस सॉलिड, मींस हमारे पास एक ऐसा सॉलिड एडजॉर्बेंट हो जिसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, पोर्स होने चाहिए, तभी हम जो टाइप 4 और टाइप 5 जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एडजॉर्बेंट जो है उसके सरफेस के ऊपर पोर्स नहीं है तो हम टाइप 4 और टाइप 5 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब देखें इसके अंदर ये कब होगा, ये सिर्फ तभी हो सकता है, देखो सबसे पहले बोलो इसके अंदर क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है बोलो, टाइप 4 जो है टाइप 2 के इक्विवेलेंट है, उसकी एक्सटेंशन है, टाइप 2 की एक्सटेंशन है, जो टाइप 2 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था उसकी एक्सटेंशन है। मींस वहां पे क्या था, सबसे पहले आपकी यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है और वो स्टेबल होती है। तो स्टेबल कब होगी, जब E1 की वैल्यू, E1 क्या, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो आपकी क्या होना चाहिए, E1 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यूनिमोलिकुलर लेयर, स्टेबल यूनिमोलिकुलर लेयर कब बनती है, जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है गैस की और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेयर वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो मींस अगर EI की वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा होगी EL से, तो क्या होगा, ई, क्योंकि जो C है उसका फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म है ये, C इज इक्वल टू E की पावर में क्या है, E1 माइनस EL डिवाइडेड बाई RT। तो मीन्स E1 की वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, C इज ग्रेटर देन 1 एंड E1 इज ग्रेटर देन EL। ये इस बात ने तो एक्सप्लेन किया स्टेबल यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन को, लाइक द टाइप 2। फर्दर अब हमें क्या करना है, हमें ये भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि यूनिमोलिकुलर लेयर तो आपकी बन गई, लेकिन यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन के बाद मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है और उसके बाद आपकी क्या होता है, फर्दर कंडेंसेशन भी होगा इन द पोर्स के अंदर। तो कंडेंसेशन कब होगा, जब गैस इजिली लिक्विफिएबल हो। गैस इजिली लिक्विफिएबल कब होगी, गैस इजिली लिक्विफिएबल सिर्फ तभी होगी जब F इज ग्रेटर देन 1 हो, P नोट की वैल्यू छोटी हो। P नोट की वैल्यू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विफाइड गैस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो अगर उसकी वैल्यू कम होगी, वेपर प्रेशर मींस इजीली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो लिक्विफाई हो ही नहीं पाएगी, मतलब वो इजीली लिक्विफाई हो जानी चाहिए, मतलब वो लिक्विड में इजीली, वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। मतलब F इज ग्रेटर देन 1 मींस P इज ग्रेटर देन P नोट। P नोट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विफाइड गैस। तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विफाइड गैस का वो कम होना चाहिए, तभी तो F की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, मींस तभी तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, तभी तो पोर्स के अंदर लिक्विफिकेशन होगी। मींस
टाइप 2 में तो शुरू में हमने यही बात लिखी थी, इनिशियली द सिंगल यूनिमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड दैट is explained by the higher value of the E1 then the EL, heat of adsorption की जो वैल्यू है फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन के दौरान, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन के दौरान वो ज्यादा है, वो हमने लिख दिया था। उसके बाद मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मल्टीमोलिकुलर कब होगी? जब इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होगी। कंडेंसेशन भी कब होगी? जब वो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होगी। एंड दस द मल्टीमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड अलोंग विद द कंडेंसेशन ऑफ द गैस इन द पोर्स ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो एफ इज ग्रेटर देन 1 हो गया हमारा यहाँ पे, और इसलिए P डिवाइडेड बाय P नॉट इज ग्रेटर देन 1 एंड दस इट एक्सप्लेन द टाइप 4 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसका एग्जांपल क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ द C6H6 at 50 डिग्री सेल्सियस इन Fe2O3। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप 5 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। जो टाइप 5 एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म है, इसको एक्सप्लेन कैसे करें? ये टाइप किसकी है बोलो? टाइप 3 की एक्सटेंशन है। टाइप 3 में हमने क्या देखा था? बिल्कुल स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब फर्स्ट लेयर ही अकेली नहीं बनेगी, एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। मींस फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल नहीं है फर्स्ट के बाद, इसलिए तो एकदम सेकंड थर्ड फोर्थ इकट्ठी बन जाती हैं। मींस सी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। मतलब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू फर्स्ट लेयर की वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए तो एकदम फर्स्ट के ऊपर एकदम क्या बन जाती है? सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बन जाती है। और फर्दर देखो कंडेंसेशन भी होगा, तो इसलिए F इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इजिली लिक्विफिएबल जो गैस होनी चाहिए वो तभी होगी जब P इज ग्रेटर देन P नोट होगा। तभी तो P डिवाइडेड बाय P नोट की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी? 1। तो तभी तो क्या होगा? इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट से ही मल्टीमोलिकुलर लेयर विल बी फॉर्म्ड on the surface of the adsorbent from the very beginning, followed by the condensation of the gas in the pores of the adsorbent, and thus it explain the type 5 adsorption isotherm, जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे। और इसका एग्जांपल क्या होगा? एडजॉर्प्शन ऑफ द H2O at 100 डिग्री सेल्सियस इन चारकोल। चारकोल के अंदर H2O की एडजॉर्प्शन वो टाइप 5 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया बेट इक्वेशन की हेल्प से। जो बेट इक्वेशन थी उसके अंदर हमने डिफरेंट कंडीशन अप्लाई की कि अंडर विच कंडीशन टाइप 1 adsorption isotherm is applicable, under which condition type 2, type 3, type 4 and the type 5 adsorption isotherm are applicable। और इन कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैलिडिटी के जो इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कब हम कहां पर है इसकी एडवांटेज, इसकी हेल्प से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कॉल्ड देयर वैलिडिटी। तो जो बेट इक्वेशन क्या थी आपकी? ये फार्मूला था V इज इक्वल टू VMCF डिवाइडेड बाय 1 माइनस F मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर F, दैट कॉल्ड द बेट इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन को देखो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। हम देखो क्या करने वाले हैं, हम सिंपल हमने काम क्या किया? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो 1 माइनस F को देखो हम ऊपर ले गए, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और जो ये CF के आगे देखो ये जो F है, देखो यहाँ पे देखो जो ये F है इसको हम इसके नीचे ले आए, देखो यहाँ पे। तो बोलो क्या बन गया? V मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस F डिवाइडेड बाय F। तो उधर सिर्फ क्या बच गया? बोलो उधर बच गया VMC। बोलो क्या बच गया इधर? VMC मल्टीप्लाइड बाय बची हुई चीज है सच है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C माइनस 1 F। तो हमने जो ऊपर बेट इक्वेशन थी उसको दोबारा कुछ ऐसे लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो ऊपर इक्वेशन थी इसका जस्ट हमने क्या लिया? अब रेसिप्रोकल। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या था? V ब्रैकेट में क्या था? 1 माइनस F डिवाइड बाय F। तो अब रेसिप्रोकल लिया तो इसका क्या बन गया? F ऊपर आ गया और डिवाइडेड में क्या आ गया? V इंटू 1 माइनस F। ऐसे ही दूसरी साइड में जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर क्या था? VMC था, VM और C, वो तो देखो नीचे आ गया। ऊपर क्या चला गया? ऊपर आ गया 1 प्लस C माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर F। तो जस्ट हमने रेसिप्रोकल लिया। बोलो हमने क्या किया? जो बेट इक्वेशन थी उसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया दो चीजों का। 1 माइनस F को ऊपर ले गए, F को नीचे, और फिर जो इक्वेशन बनी उसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया और ये इक्वेशन आपके सामने। अब हम क्या करेंगे? जो नीचे VMC है उसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय देखो VMC प्लस उधर कौन आ गया? C माइनस 1 F तो था ही डिवाइडेड बाय VMC। और इससे अब क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे बना दी दैट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। that is a straight line equation means y is equal to mx plus c। तो यहाँ पे x कौन है? देखो ग्रीन कलर से हमने इसलिए शो किया है ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे, पहचानने में आसानी रहे। तो देखो y किसके इक्विवेलेंट है? f डिवाइडेड बाय v ब्रैकेट में बोलो क्या है? 1 माइनस f, ये तो हो गया y। उसके बाद आप देखें
हमने ब्लैक एक्स को छोड़ रखा है, तो यहाँ पे ब्लैक किसको छोड़ा है, एफ को। उसके बाद m जो लिखा है ये क्या है, स्लोप। तो स्लोप कौन है जो f के साथ है, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय vmc प्लस में c क्या है, ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट वहां पे कौन हो गया, 1 डिवाइडेड बाय vmc। मींस जो आपका स्लोप तो कौन हो गया, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय vmc, और इंटरसेप्ट कौन हो गया, 1 डिवाइडेड बाय vmc। अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस चीज को, किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे किसको लेंगे, f डिवाइडेड बाय v इंटू 1 माइनस एफ, और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर किसको ले लेंगे हम, f को, एंड इट विल गिव द स्ट्रेट लाइन, और हमें एक स्ट्रेट लाइन देखो मिल जाती है। और जो स्ट्रेट लाइन मिली, क्या ये स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, नो क्यों नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी बिकॉज सी हियर इज द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू है। इंटरसेप्ट मींस द जो ग्राफ इज नॉट स्टार्ट विद द फ्रॉम द वेरी ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से कुछ ऊपर से होगा। तो जो ये आपका मैग्नीट्यूड बच गया, जो आपकी लेंथ बच गई अलोंग द वाई एक्सिस, जहां से ग्राफ आपका देखो स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो मैंने रेड कलर से डॉट लगा दी यहाँ से, तो नीचे का जो एरिया बच गया, लेंथ बच गई, जो मैग्नीट्यूड बच गई ऑन द वाई एक्सिस, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है इधर, और ये आपका वाई एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा था आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपका जो मैग्नीट्यूड बच गया है, तो वो क्या है, वो इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय VMC। और अब उसके बाद स्लोप कैसा है, अब ध्यान से देखें, जो आपका ये फॉर्मूला है ऊपर, उसमें c माइनस 1 डिवाइडेड बाय VMC जो स्लोप है, उसके साथ बोलो कैसा साइन है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखें आप, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बोलो कैसा साइन है, देयर इज द पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन का होना क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज बोलो क्या है, पॉजिटिव है। सो स्लोप की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे लिखी है, देखो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू c माइनस 1 डिवाइडेड बाय VMC, और स्लोप इज पॉजिटिव है, स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे। इसलिए जो डॉटेड लाइन है, स्लोप देखो ऊपर की तरफ गया है, देखो ऐसे नीचे थोड़ी ना आया है, नीचे तो नहीं आई आपकी लाइन, आपका कर्व कहाँ पे गया है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो मीन स्लोप इज पॉजिटिव। मींस अगर जो वाई एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन है उससे कुछ एंगल थीटा है, उस थीटा एंगल से आपका स्लोप बना है, तो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हम आखिर अब इसकी वैलिडिटी क्या है, बेट इक्वेशन की हेल्प से हम डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सी। हम सी को कैसे कैलकुलेट करें, देखो आपके पास स्लोप आ गया, आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, इनकी हेल्प से हम देखो सी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर हम स्लोप को इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दें, जो इंटर स्लोप की वैल्यू क्या है बोलो, c माइनस 1, देखो ब्लू कलर से हमने शो कर रखी है, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय VMC, वो तो स्लोप हो गया, उसको डिवाइड किससे करें, इंटरसेप्ट से, इंटरसेप्ट बोलो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय VMC, 1 डिवाइडेड बाय VMC, जो ऑरेंज कलर से हमने या रेड कलर से हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो स्लोप की जगह हमने स्लोप की वैल्यू पुट की, बोलो स्लोप की जगह हमने क्या लिखा, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय VMC, और अब इसके डिवाइडेड में बोलो, स्लोप के डिवाइडेड में क्या था नीचे, इंटरसेप्ट, तो वहां पे हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट की, देखो 1 डिवाइडेड बाय VMC प्लस में 1, तो 1 तो है ही। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से बोलो क्या हुआ, देखो VMC से तो देखो VMC कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब क्या बच गया बोलो, यहाँ पे c माइनस 1 बच गया, यहाँ पे इस एरिया में तो कोई बचा नहीं, c माइनस 1, और आगे प्लस 1 तो था ही, अब प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गया, c। तो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन्स जो आपका ग्राफ है ये, इस ग्राफ की हेल्प से हमारे पास बोलो क्या आ गया, एक तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, वो नोन है हमारे लिए, उसके बाद स्लोप की वैल्यू आ गई, वो भी नोन है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने स्लोप की वैल्यू को इंटरसेप्ट से डिवाइड किया, इंटरसेप्ट की वैल्यू से डिवाइड किया, प्लस 1 कर दिया, और अब हमने वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा करने से हमारे आगे जो आंसर आता है वो सी आता है, दैट इज सी, वो बोलो कौन आ गया, सी आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हमने देख लिया कि विद द हेल्प ऑफ दैट बेट इक्वेशन जो है उसको यूज करते हुए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वहां से जो हमें इंटरसेप्ट और स्लोप मिलता है, उन वैल्यूज को यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है वीएम को कैलकुलेट करना। तो देखो वीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्लोप प्लस इंटरसेप्ट। अब देखो इसको भी मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं, वीएम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप प्लस इंटरसेप्ट, मीन सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे हम, स्लोप की जगह स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट की जगह इंटरसेप्ट की वैल्यू, देखो हमने पुट किया, तो 1 डिवाइडेड बाय स्लोप क्या था बोलो, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय VMC, प्लस इंटरसेप्ट की जगह इंटरसेप्ट की वैल्यू, बोलो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, 1 डिवाइडेड बाय VMC, वो देखो हमने पुट कर दी यहाँ पे। पुट करने के बाद अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो देखो क्या आ गया, नीचे बोलो कौन है, नीचे वाले पोर्शन
का लिया है, देखो इस पोर्शन का, VMC दोनों में कॉमन है, तो देखो नीचे VMC आ गया, कॉमन हो गया, ऊपर क्या है C माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस 1 आप आपस में देखो कैंसिल हो गए, VMC ऊपर चला जाएगा, देखो बोलो ऊपर कौन चला गया, VMC, क्योंकि डिवाइडेड में ऊपर हो गया, नीचे कौन बच गया, सिर्फ C, अब C से देखो C कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गया, VM, हेंस प्रूव्ड कि VM की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VM ही आंसर आ रहा है, तो मींस हम वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द C एज वेल एज द वैल्यू ऑफ VM by using the Bett equation, by using the graph of the Bett equation, from where we initially determine the value of the intercept and the value of the slope, and by using the value of the intercept and the slope we can determine the value of C and the value of VM, हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आखिर जो ये बेट इक्वेशन हमने देखी, देखो ये इसकी आखिर ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक मींस ये कब कब एप्लीकेबल होगी और कब एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखो सबसे पहली ड्रॉबैक, इट इज एप्लीकेबल, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है, जो देखो बेट इक्वेशन का मतलब ये, जो बेट इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने जो ये ग्राफ प्लॉट किया है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें क्या मिली, हमने अभी देखा था इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, जो स्ट्रेट लाइन आई है विद पॉजिटिव स्लोप, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ कब आएगी, दैट स्ट्रेट लाइन वी गॉट ओनली अंडर द पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर दैट इज फ्रॉम 0.05 टू 0.35 एटमोस्फियर। अगर हम प्रेशर रेंज इतनी रखते हैं 0.05 से लेके 0.35 एटमोस्फियर की रेंज रखते हैं, तभी हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस ग्राफ के अंदर, अदरवाइज हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मींस हमारी बेट इक्वेशन के ऊपर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बेट इक्वेशन फिर फेल हो जाती है। तो बेट इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रेशर की रेंज इतनी रखनी पड़ती है, हमें ऐसा ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए जो आपको दिख रहा है जिसमें स्ट्रेट लाइन मिले विद पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड द स्लोप विद पॉजिटिव स्लोप, और स्ट्रेट लाइन भी मिले, तो हमारे पास ये प्रेशर रेंज होनी चाहिए, तभी हमें ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो बेट इक्वेशन है, जो हमने कहा इसके ऊपर मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है, तो मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द हाईली पॉलिश्ड सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल ही आपके पॉलिश्ड सरफेस है, तो उसके ऊपर आपकी एडजॉर्शन प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगी, तो मींस बेट इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम P टेंड्स टू P नोट, अगर P की वैल्यू इंक्रीज करते 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 हम उसको P नोट पहुंचा दें, P नोट पहुंचा दे तो क्या होगा, P नोट अगर हम पहुंचा दें तो P क्या था, P नोट क्या था, बोलो वहां पे P नोट था आपका कि आपके जो इजीली लिक्विफिएबल गैस नहीं है, इजीली लिक्विफिएबल गैस नहीं होगी तो क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा उसके बाद, यानी प्रेशर जो आप कर देंगे तो V बिकम्स इन्फिनिटी एंड इट इज नॉट द केस, और ये कोई कंडीशन ऐसी बन ही नहीं सकती, ये केस हमने कोई स्टडी नहीं किया, ऐसा कोई केस हमें मिला ही नहीं जिसके अंदर ऐसा कुछ हो जाए, मींस व्हेन P टेंड्स टू P नोट देन V बिकम्स इन्फिनिटी एंड इट इज नॉट द केस। ऐसा केस हमारे सामने, क्योंकि सबसे पहले हम थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो जाए तभी हम उसको एप्लीकेबल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बेट इक्वेशन के इक्वेशन, इसकी हेल्प से और हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अभी जैसे हमने पीछे बताया था VM की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो कैलकुलेट करने के बाद और फर्दर हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, और एप्लीकेशन क्या है, हम सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं एडजॉर्वेंट का, जो एडजॉर्वेंट है उसका सरफेस एरिया हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेट इक्वेशन। अब वो कैसे, वो हम देखते हैं। मींस द बेट इक्वेशन इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्वेंट एज फॉलोज। जैसे हमने क्या किया, ये एडजॉर्बेंट का सरफेस लिया, उसके ऊपर आपके एडजॉर्बेंट के पार्टिकल देखो आके एडजॉर्ब हो गए, आपकी यूनिमोलिकुलर लेयर बन जाती है, उसके बाद फर्दर मल्टीमोलिकुलर लेयर बनी होती है। VM क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन, और S क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ वन मोलिक्यूल। S क्या है बोलो यहाँ पे, एरिया ऑफ द वन मोलिक्यूल, वन एडजॉर्बेट मोलिक्यूल। मींस अगर हम आइडियल कंडीशन लगा दें, अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन लगा दें, मीन स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल के अकॉर्डिंग, 1 मोल की जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल इक्विवेलेंट टू बोलो क्या, एवोगैड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल अगर हमारे पास कोई गैस है तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इट विल ऑक्यूपाई द 22.4 लीटर। 22.4 लीटर का मतलब 22400 ml, means 22400 ml of the gas at STP contains how many molecules, is equivalent to the Avogadro's number, that is 6.023 into 10⁻23 molecules. If the volume is not 22400 ml, if the volume is 1 ml, if 1 ml of the gas at STP contains how many molecules, and not divided by क्या आ जाएगा 22400 molecules,
अगर हमारे पास वॉल्यूम कितना हो एट एसटीपी V1 VM ml, क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है डायग्राम के अंदर कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस during the formation of the unimolecular layer is Vm. So if the Vm ml of the gas is present at STP, then the how many number of molecules are there? तो हमने Vm से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स which are present in the VML of the gas, जो VMML of the जो गैस है जिसकी वजह से यूनिमोलिकुलर बनी है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे आ गए, N नॉट डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाइड बाय VM. These are the number of the molecules which are present in the VMML of the gas at STP. Further, if the area occupied by the one molecule is, जैसे डायग्राम में हमने ऊपर ही लिख दिया था, अगर जो एक मॉलिक्यूल है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, अगर वो ऑक्यूपाई करता है S, उसके एरिया को हमने S मान लिया. एरिया ऑक्यूपाइड बाय these all molecules which are present in the VMML of the gas, VMML of the gas के अंदर जितने molecules थे, अब वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय N नॉट डिवाइडेड बाय 22400 VM molecules इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो देखो N नॉट डिवाइडेड बाय 22400 VM मल्टीप्लाइड बाय S आ गया आपका. तो मींस दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द जो एडजॉर्बेंट है, वही तो एरिया है, वही तो एरिया है किसका, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, क्योंकि उसी के ऊपर तो यूनिमोलिकुलर लेयर बनी हुई है एडजॉर्बेंट के द्वारा. तो द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट इज, वो इसी के इक्विवेलेंट आ गया. फर्दर हम ये जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग कि P इज इक्वल टू nRT होता है, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, P को देखो डिवाइडेड में ले आएंगे और V इज इक्वल टू nRT बाय P. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अगर 1 मान ले हम और स्टैंडर्ड कंडीशन हम कर दें, तो उस वक्त क्या होगा, टेस्ट एट एसटीपी वॉल्यूम कितना होगा 22400, तो वॉल्यूम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 मानेंगे क्योंकि 1 मोल गैस का ही ये वॉल्यूम होता है. आर टी नोट का मतलब आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पी नोट का लो स्टैंडर्ड प्रेशर. इट मींस 22400 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर टी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट. तो मींस यहाँ पे जो ये 22400 जो है, देखो ये यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो ये 22440 की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर. तो देखो क्या आ गया, एन नोट ऊपर क्या था, देखो एन नोट वीएम, एस तो पहले से था, अब 22400 की जगह हमने यहाँ पे नीचे बोलो क्या पुट किया, देखो यहाँ पे हमने पुट किया ये चीज आर टी नोट डिवाइडेड, देखो आर टी नोट नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय पी नोट वो देखो ऊपर चला गया. सो दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट. तो इस टाइप से हम सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेट इक्वेशन. तो आज हमने इन डिटेल देखा कि बेट इक्वेशन है क्या. उससे पहले हमने देखा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, कितने डिफरेंट टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो सकते हैं. फिर हमने बेट इक्वेशन को देखा, कौन कौन सी अजम्पशंस ली जाती हैं उसको डिराइव करने के दौरान वो देखा, उसके अजम्पशंस देखी, वैलिडिटी देखी, इसकी ड्रॉबैक्स देखी, फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखी. और फिर हमने बेट इक्वेशन की हेल्प से हमने डिफरेंट टाइप के जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थे टाइप 1 से टाइप 5 को, उनको हमने एक्सप्लेन भी किया by applying some conditions कि कौन सी conditions के ऊपर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और या टाइप 5 एक्सप्लेन किया जा सकता है. उन कंडीशंस को हमने स्टडी किया. सो दैट इज ऑल अबाउट द बेट इक्वेशन. बेट इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो हम आगे आने वाले किसी लेक्चर के अंदर आपको अलग से करवाएंगे. थैंक यू.